Hello students, welcome to my channel Blue Star Academy for English. Today I am with the remaining part of the chapter which I uploaded in the last classes. Lost Spring. Lost Spring का मैंने पहला वीडियो उसमें डाल दिया था और बेटा ये चैप्टर 50% बच गए थे तो इसलिए पार्ट सेकंड करके मैं ये दूसरा वीडियो और बनाने जा रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ इसका पहला पार्ट आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा और दूसरे पार्ट में भी मैं लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो ओके, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वी शुड स्टार्ट द चैप्टर लॉस्ट स्प्रिंग। तो द न्यू स्टोरी स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। मुकेश फैमिली, मुकेश के फैमिली के बारे में स्टोरी स्टार्ट होगी और एनी जंग की मुलाकात जो है वो मुकेश से होता है, हु इज़ जस्ट ड्रीमिंग ऑफ बिकमिंग अ मोटर मैकेनिक। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, मुकेश इंसिस्ट ऑन बीइंग हिज ओन मास्टर। आई विल बी अ मोटर मैकेनिक, he announces. Do you know anything about the cars? I asked. I will learn to drive a car, he answers, looking straight into my eyes. His dream looms like a mirage amidst the dust of streets that fill his town, Firozabad. Famous for its bangles, every other family in Firozabad is engaged in making bangles. It is the center of India's glass blowing industry where families have spent generations working around furnaces, welding glass, making bangles for all the women in the land, it seems. ओके बेटा, तो इस पैराग्राफ में एनी जंग की मुलाकात मुकेश से होता है और मुकेश वो बताता है कि मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो एनी जंग उनसे सवाल करती हैं कि क्या तुम्हें कार चलाना आता है? तो वो मुकेश कहता है कि मैं एक मोटर मैकेनिक बन जाऊँगा तो फिर कार चलाना भी जान जाऊँगा। तो फिर ये कहती हैं कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो? वो कहता है कि मैं कार चलाना सीख जाऊंगा। और इस तरह आंखों में आंखें डालकर बात करता है, लेकिन उसके सपने जो है, जहाँ पे वो सपने देख रहा है वो धूल भरी गली में देख रहा है और ऐसा लग रहा है कि वो अपने सपनों को पूरा करने के लिए और बिल्कुल तत्पर है। और जैसे एक हिरन जब प्यासा होता है तो पानी के लिए जिस तरह उसकी जो लस्ट है वो आंखों में दिखती है, इस ढंग से मुकेश की आंखों में एक अजीब तरह की चमक है और वो जस्ट उसके सपने पूरे करने की वो ताकत, वो कैपेसिटी उसकी आंखों में दिख रही है। और वो इसमें ये भी जानकारी है कि फिरोजाबाद जो है, जैसा आप जानते हैं कि बैंगल्स के लिए फेमस है और वहाँ का हर परिवार, फिरोजाबाद का हर परिवार जो है चूड़ियाँ बनाने में और बिजी रहता है। यानी कि उनके एंसेस्टर्स, उनके दादा परदादा सभी चूड़ियाँ ही बनाते थे। यानी कि इंडिया का सबसे बड़ा ग्लास इंडस्ट्री जो है वो फिरोजाबाद के अंदर है और कई सारे जनरेशन्स जो है चूड़ियाँ ही बनाते आए हैं। उनका काम है फर्नेस के चारों तरफ काम करना, ग्लास को वेल्डिंग करना, चूड़ियाँ बनाना, और जिसमें कि पुरुष के साथ साथ लेडीज़ भी इन्वॉल्व हैं। ओके बेटा, अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं। मुकेश फैमिली इज एमंग देम, none of them know that it is illegal for children like him to work in the glass furnace with high temperature, in dingy cells without air and light. That the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slogged their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. Mukesh's eyes beam as he volunteers to take me home, which he proudly says is being rebuilt. We walk down stinking lanes choked with the garbage, past homes that remain hovels, with crumbling walls, wobbly doors, no windows, crowded with the families of humans and animals coexisting in a primeval state. He stops at the door of one such house, bangs a wobbly iron door with his foot, and pushes it to open. We enter a half-built shack
In one part of it, thatched with dead grass, is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. On the ground, in large aluminium platters, all more chopped vegetables. A frail young woman is cooking the evening meal for the entire family. Through eyes filled with smoke, she smiles. She is the wife of Mukesh's elder brother. Not much older in years, she has begun to command respect as Bahu, the daughter-in-law of the house, already in the charge of three men, her husband Mukesh and their father. When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. As custom demands, daughter-in-law must veil their faces before male elders. In this case, the elder is an impoverished bangle maker. Despite long years of hard labor, first as a tailor, then a bangle maker, he has failed to renovate a house, send his two sons to school. All he has managed to do is teach them what he knows, the art of making bangles. ओके बेटा, इस पैराग्राफ के अंदर हम ये जान पाएंगे कि मुकेश के फैमिली के बारे में जान पाएंगे, यानी कि फिरोजाबाद का एक परिवार जो मुकेश की फैमिली है, जो फिरोजाबाद के अंदर रहती है, जिनका चूड़ियों बनाने का काम है, और उनके पूर्वज, साथ साथ उनके माता पिता, वह खुद, उसके भाई बहन भाभियाँ सभी जो है वो चूड़ियों बनाने में व्यस्त है। और सबसे बड़ी बात है, उनमें से कोई भी नहीं जानता है कि वहाँ जो बच्चे बैंगल्स इंडस्ट्री में लगे हुए हैं और ग्लास फर्नेसेस में हाई टेम्परेचर में वो काम करते हैं, डिंजी सेल्स में काम करते हैं। डिंजी सेल्स का मतलब हुआ छोटे छोटे कमरे जिसमें कोई रोशनी नहीं है, जहाँ पे कोई एयर, सूरज की रोशनी तक नहीं आती, राइट, और वो सभी काम करते हैं। और उनको ये भी पता है कि वहाँ पे लगभग उस फैक्ट्री के अंदर पूरे फिरोजाबाद में यानी कि 20,000 बच्चे और काम करते हैं उस हॉट फर्नेसेस के आसपास, और उन बच्चों की आंखों की रोशनी भी चली गई है, राइट। और उनको ये भी नहीं पता है कि कानून ये कहता है कि छोटे छोटे बच्चों से काम करवाना अपराध है, और इसके बावजूद वो बच्चे उसमें काम कर रहे हैं। और मुकेश जो है एनी जंग को अपने साथ लेकर और वो घर की तरफ जाता। उसने ये भी कहा कि वो जो है घर को रीबिल्ड करवाया है, यानी कि दोबारा उसकी मरम्मत करवाया है, और उसके बाद आउथर को वो अपने घर ले जाता है, जहाँ की उन गलियों से उन्हें गुजारता है जहाँ की गलियों में कूड़े वगैरह जमा है, जहाँ से बदबू आ रही है, स्टिंकिंग लैंड्स है, जहाँ गार्बेज जो है इधर उधर पड़ा हुआ है, और जो वहाँ दीवारें हैं उसमें दरारें पड़ गई है, जो डोर्स बने हुए हैं वो वॉबली डोर्स हैं, मतलब दरवाजे लटके पड़े हैं, यानी कि टूटा हुआ दरवाज़ा है, उसमें कोई खिड़की नहीं है, और जानवर और इंसान दोनों एक ही जगह पे रह रहे हैं, जैसे कि प्रीमिवल स्टेट में रहा करते थे, प्राचीन जमाने में लोग रहा करते थे। और वो आउथर के साथ आगे बढ़ता है और वो एक दरवाजे के आगे रुकता है, जहाँ की एक लोहे का गेट लगा हुआ है जो वॉबली आयरन डोर है। इसका मतलब है लोहे का दरवाजा है और वो टूटा हुआ है, जो ऐसे झूल रहा है इस टाइप का, और पैर से मारता है, उसको खोलता है। उसके बाद वो थोड़ा आगे बढ़ता है और उस घर की हालत यह है कि वो थैच्ड विद डेड ग्रास, यानी कि फूस वगैरह उसके छप्पर पे डला हुआ है, और फायरवुड का स्टोव है, यानी कि लकड़ियों से खाना वहाँ बनता है, और एक पतीले में, एक विजल में वहाँ पे जो है पालक की पत्तियों को डाल दिया गया है जिसमें वो उबल रहा है, और ज़मीन पे एक बहुत बड़ा एल्युमिनियम प्लेटर्स है जिसमें कि सब्जियां ऐसे काट करके रखी हुई है। ए फ्रेल यंग वीमेन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द इंटायर फैमिली। और एक फ्रेल का मतलब होता है पतली दुबली औरत। एक पतली दुबली जवान औरत जो है वो पूरे परिवार के लिए खाना बना रही है, और जब लकड़ी से खाना बना रही है तो पूरा मुंह जो उसका है वो धुएं से भरा हुआ है, और वो हम लोग को जैसे ही देखती है, यानी कि आउथर को और मुकेश, आउथर देखती है कि उसका पूरा जो है चेहरा वो धुएं से भरा हुआ है और वो मुस्कुराती है। और वो कौन है कि मुकेश के बड़े भाई की वो वाइफ है, यानी मुकेश की भाभी है वो, राइट।
और उसको कई साल पहले उसको बहू बनाकर लाया गया था उस घर में, और उसके ऊपर जिम्मेदारी अपने हस्बैंड की है, मुकेश देवर की है, और प्लस मुकेश के फादर की है यानी ससुर की है। और जैसा रीति रिवाज है, कोई भी उनसे बड़ा अगर घर में आता है, वो जो है अपनी घूंघट को और चेहरे के पास छिपा लेती है, और दरवाजे के पीछे जो बिल्कुल ब्रोकन वॉल्स है ना, वहाँ पे छुप जाती है। यही कस्टम कहता है कि जब कोई अपने से बड़े आता है तो फिर घूंघट लेडीज को अपने मेल जो एल्डर्स हैं उनसे पर्दा करना पड़ता है, राइट। और इतना ही नहीं, जो उसके एल्डर्स हैं वो भी इम्पोवरिश्ड बेंगल मेकर हैं। इम्पोवरिश्ड का मतलब बहुत ही गरीब हैं वो, है ना, और गरीबी से जकड़े हुए हैं, दे आर वेरी पुअर। और इतना हार्ड लेबर करने के बावजूद, यानी कि उनके ससुर, उनके हस्बैंड मुकेश, उनकी सास, सब कुछ मेहनत करने के बाद वो जो है अपने घर की मरम्मत तक नहीं करवा पाए हैं, और जो 2 बच्चे हैं उनको स्कूल भेजने में भी वो फेल रहे हैं, और ये सब सारा कुछ मैनेज करना, राइट। और वो बताते हैं कि मेरे पास एक ही कला है, वो है द आर्ट ऑफ मेकिंग द बैंगल्स, राइट। सो यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है कि डिस्क्राइब द हैजार्ड सिचुएशन ऑफ द बैंगल्स इंडस्ट्री, है ना, कि बैंगल इंडस्ट्री का क्या सिचुएशन था। तो ये यहाँ पे आप लिखेंगे कि वहाँ हॉट फर्नेसेस हाई टेम्परेचर के साथ, और डिंजी सेल्स जहाँ कोई एयर नहीं, लाइट नहीं, और सभी वहाँ पे काम करते हैं और कूड़े करकट के बीच काम करते हैं, राइट। फ्रेश एयर उनको नहीं मिलता है। तो अब हम नेक्स्ट पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ। इट इज हिज कर्म हिज डेस्टिनी सेज मुकेश ग्रैंडमदर हु हैज वॉच्ड हर own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. Can a god given lineage ever been broken, she implies. Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard, in every other house. Every other yard, every street in Firozabad, spirals of bangles, sunny gold, paddy green, royal blue, pinky, purple, every color born out of the 7 colors of the rainbow, lie in mounds in unkempt yards, are piled on 4-wheeled handcrafts, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town, and in dark hutments next to the lines of flames of flickering oil lamps, sit boys and girls with their fathers and mothers, welding pieces of colored glass into circles of bangles. Their eyes are more adjusted to the dark than to the light outside. That is why they often end up losing their eyesight before they become adults. यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज होता है इस पैराग्राफ से कि वहाँ के जो बच्चे हैं, जो एडल्ट हैं, वो बहुत ही जल्दी, है ना, अपनी आँख की रोशनी क्यों खो देते हैं। यानी कि व्हाट वाज द रीजन द पीपल दोज हु आर स्टेइंग इन द स्ट्रीट ऑफ फिरोजाबाद दे इमीडिएटली लॉस देयर आई साइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। क्या कारण है। अब मुकेश की फैमिली में मुकेश की जो है दादी माँ होती हैं, जो सब कुछ ये देख रही होती हैं और बहुत पहले से देखती आई हैं, अपने हस्बैंड को भी देखते आई हैं, वो भी चूड़ी बनाते थे। यानी कि उस हॉट फर्नेसेस पे काम करने की वजह से वो अपनी आँख की रोशनी खो बैठे हैं, और वो बहुत ही दुख के साथ कहती हैं कि जो भगवान ने ये जो लकीरें खींच दी है गरीबी की रेखाएं, क्या ये कभी हट सकती है। यानी जो भाग में लिखा है उसको कभी हटाया नहीं जा सकता है। और हम बैंगल मेकर्स परिवार में पैदा लिए हैं, तो हमारा कोई और काम ही नहीं है बैंगल बनाने के अलावा। यानी कि आप देख सकते हैं, यानी कि वो पोएटेस को बताती है, यानी एनी जंग को बताती है कि आप देख सकते हैं हमारे आंगन में, हमारे हर घर में, आप किसी भी गली में देख लीजिए तो हर जगह फिरोजाबाद की गलियों में जो है केवल चूड़ी बनाने का ही इंडस्ट्री है। और स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ बैंगल्स आर स्प्रेडेड हेयर एंड देयर, है ना, और डिफरेंट कलर में हैं। वो गोल्ड कलर के हैं, पैडी ग्रीन है, रॉयल ब्लू है, पिंक, पर्पल, एवरी कलर के। और यानी कि यू कैन से कि रेनबो के जो 7 कलर्स होते हैं, हर रंग की चूड़ियां आपको यहाँ पे मिल जाएगा, जो खुले आंगन में ऐसे ही पूरा पाइल किया हुआ है, मतलब ढेर के रूप में रखा हुआ है। और इनके कई जनरेशन फादर्स, मदर्स, है ना, और 4 फादर्स
ये जो है एक लैंप फ्लिकरिंग ऑफ लैम्प्स, यानी कि उसके फ्लैम्स में वो काम करते हैं। लैंप में कितनी रोशनी होती है, वहाँ वो डिंजी सेल्स के अंदर काम करते हैं, और एज ए रिजल्ट यानी कि वो इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि उनको रोशनी की जरूरत नहीं पड़ती। वो अंधेरे में भी उनका हाथ जो है मैकेनिक की तरह चलता है बिल्कुल, और फटाफट वो चूड़ी को वेल्डिंग करते हैं, एडजस्ट करते हैं। और कम रोशनी में काम करने की वजह से यानी कि एडल्ट होने से पहले और उनकी आंख की रोशनी चली जाती है। अब यहाँ से एक न्यू कैरेक्टर, यानी कि अब तक जो हम पढ़ रहे थे मुकेश के बारे में पढ़ रहे थे, मुकेश की फैमिली के बारे में पढ़ रहे थे, बैंगल्स इंडस्ट्री के बारे में हमने स्टडी किया। और अब जो है एक दूसरा कैरेक्टर सविता के बारे में है, तो सविता के बारे में हम पढ़ेंगे। सविता, ए यंग गर्ल इन ड्रैप पिंक ड्रेस, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass. As her hands move mechanically like the tongues of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make. It symbolizes an Indian woman's suhag, auspiciousness in marriage. It will dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna, and red bangles rolled onto her wrist. She will then become a bride, like the old woman beside her who became 1 year ago. She still has bangles on her wrist, but no light in her eyes. एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, she says in a voice trained of joy. She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. Her husband, an old man with a flowing beard, says, I know nothing except bangles. All I have done is make a house for the family to live in. Right? तो इसके अंदर इस पैराग्राफ में हम ये देख रहे हैं कि सविता नामक एक यंग गर्ल है जो कि एक बहुत ही पिंक ड्रेस में है, जिसका कि रंग जो है बिल्कुल उड़ा हुआ है, यानी बदरंग साड़ी वो पहनी हुई है, और अपने से जो बड़े औरतें हैं घर में, यानी दादी हुई, मम्मी हुई, उसके साथ वो बैठी हुई हैं, और ग्लास को जो है सोल्डरिंग कर रही हैं, शीशों को जोड़ रही हैं ताकि चूड़ी बनाया जा सके। और उसका हाथ जो इस ढंग से मैकेनिकली ऑटोमेटिक, वो इतनी तेजी से फास्ट हो रहा है जैसे मशीन का टंग्स काम करता है, चिमटा काम करता है। और एनी जंग कहती हैं कि शायद सविता को, उसको ये पता नहीं है, इस बैंगल्स की पवित्रता का पता नहीं है, सैंक्टिटी का पता इसको नहीं है जो वो बना रही है, क्योंकि भारतीय महिलाओं का ये सुहाग का निशानी है, ये शादी के में शुभ माना जाता है। और एक दिन वह जब दुल्हन बनकर जाएगी और वो घूंघट उसके सर पे होगा, उसके हाथ में मेहंदी होगी और हाथों में लाल लाल चूड़ियाँ होगी, इसलिए वो चूड़ियों की इम्पोर्टेंस को नहीं जानती है, उसकी पवित्रता को नहीं जानती है, और तब वो एक दुल्हन बन जाएगी। और जो ओल्ड वुमेन जो काफी साल पहले इस तरह दुल्हन बनकर आई थी, वो यानी कि अब अपने आई साइड भी खो चुकी हैं, और वो उनकी आंखों में कोई लाइट नहीं है। और इतना ही नहीं, वो जो हैं ये भी कहती हैं, यानी कि जिनके चेहरे पे कोई खुशी नहीं है, और वो कहती हैं कि एक वक्त जो है शेर भर खाना भी नहीं खाया, भरपेट उनको खाना नहीं मिला, यानी कि पूरा इंटायर लाइफ टाइम काम करने के बाद अब भी इस स्थिति में नहीं है, अब भी इम्पोवरिश्ड कंडीशन में हैं, और उनको भरपेट खाना तक नहीं मिल पा रहा है। तो दिस टाइप ऑफ लाइफ द इंटायर फैमिली, दोज हु आर लिविंग इन फिरोजाबाद आर लिविंग, दैट इज वेरी डिजास्ट्रस फॉर देम एंड फॉर आवर इंडियन सोसाइटी। और उनका जो हस्बैंड है जो वहीं पे बैठा हुआ है, वो अपने दाढ़ी पे लंबी लंबी दाढ़ी बढ़ाए हुए उस पर हाथ फेर कर कहता है कि मेरे पास चूड़ी बनाने के अलावा कुछ नहीं है, और मैंने अपने लाइफ में अगर कुछ किया है तो वो किया है कि अपने जो है सर पे एक छत बना लिया है, रहने के लिए घर बना लिया है, और नथिंग एल्स। किसी बच्चों को स्कूल नहीं भेजा, कोई काम नहीं किया। The cry of not having money, do not anything except carry on the business of making bangles. Not even enough to eat rings in every home. The young men echo the lament of their elders. Little has moved with the time.
It seems in Firozabad, years of mind-numbing toil have killed all initiatives and the ability to dream. Why not organize yourselves in a cooperative? I ask a group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten, and dragged to the jail for doing something illegal. Deshi. There is no leader among them, no one who could help them see things differently. Their fathers are as tired as they are. They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. इस पैराग्राफ के अंदर उनकी जो है दर्दनाक स्थिति को, बहुत ही मिजरेबल कंडीशन को दिखाया गया इस चैप्टर के अंदर। इसमें यह बताया गया है कि द क्राई ऑफ नॉट हैविंग मनी डू एनीथिंग एक्सेप्ट कैरी ऑन द बिजनेस ऑफ मेकिंग बैंगल्स, यानी कि उनके पास चिल्लाने के अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि उस बिजनेस को कैरी ऑन करने के लिए और बढ़िया तरीके से करने के लिए उनके पास पैसे भी नहीं है, क्योंकि खाने के लिए पैसे नहीं है। ये प्रॉब्लम है। और यंग मैन जो हैं वो और उनके एल्डर्स भी जो हैं केवल विलाप करते हैं, रोते हैं, और इतना टाइम हो गया, समय गुजर गया, लेकिन कुछ भी उनके लाइफ में कुछ भी परिवर्तन नहीं आया है। फिरोजाबाद के अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं आया। और उनके अंदर इतना ही नहीं, जो एबिलिटी है ना, वो भी लगता है सपने देखना भी वो बंद कर दिए, क्योंकि उनको पता है कि अब लाइफ में कुछ नहीं होने का। तो a group of women are sitting over there, then any young just ask question to them that why not organize yourselves in a cooperative? आप लोग एक काम क्यों नहीं करते हैं कि कोऑपरेटिव क्यों नहीं बनाते, है ना? आप लोग संगठित क्यों नहीं होते, ऑर्गेनाइज क्यों नहीं होते? वो ऐसा कहते हैं। तो वहां जो है मिडल मैन, यानी कि उस शहर के अंदर जो बिचौलिए हैं, उनकी जंजाल में, उनकी जाल में ये फंसे हुए हैं। इनके फादर्स भी फटे हुए थे, इनके फोर फादर्स भी यहाँ फंसे हुए थे, और उनका कहना है कि अगर हम कभी भी ऑर्गेनाइज होने की कोशिश करते हैं तो हमें या तो पुलिस उठा ले जाती है, पीटती भी है, और लास्ट में जेल में डाल देती है। और वो कहते हैं कि ऐसा करना जो है इलीगल काम है, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन बनाना ये इलीगल काम है। और सबसे बड़ी बात है, अपने को कोई लीडर नहीं है हम लोगों का, हमारी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं है। और जैसे हमारे फादर्स थके पड़े हैं, वैसे मैं भी थक गया हूँ। मेरे फोर फादर्स ने कुछ नहीं किया तो हम क्या कर सकते हैं जी। और वो ऐसे ही जो है यानी कि दे टॉक इंटलेस्टली इन अ स्पाइरल, और इस ढंग से वो ऐसे ही लंबी बातें करते रहते हैं। और ये लंबी बातें क्या होता है कि मूव्स फ्रॉम पॉवर्टी टू अपैथी, और गरीबी जो है घृणा को जन्म देती है। पैथी का मतलब घृणा होता है, हेटरनेस होता है ना। गरीबी से उनके अंदर घृणा उत्पन्न होता है, और घृणा से लालच पैदा होता है, और लालच से फिर इनजस्टिस पैदा होता है, उनको न्याय की तरफ ले जाती है। हर एक गरीब इंसान की यही स्थिति है। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिसनिंग टू देम आई सी टू डिस्टिंक्ट वर्ल्ड्स, one of the family caught in a wave of poverty, burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, a vicious circle of sahukars, the middleman, the policeman, the keepers of law, the bureaucrats, and the politicians. Together, they have imposed the baggage on the child that he cannot put down. Before he is aware, he accepts it as naturally as his father. To do anything else would mean to dare, and daring is a part of his growing up. When I sense a flash of it in Mukesh, I am cheered. I want to be a motor mechanic, he repeats. He will go to a garage and learn. But the garage is a long way from his home. I will walk, he insists. Do you also dream of flying a plane? He is suddenly silent. No, he says, staring at the ground. In his small murmur, there is an embarrassment that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars, that he says, that has not yet turned into regret. He is content to dream of cars, that he says, hurtling down the streets of his own. Few airplanes fly over Firozabad. राइट? तो ये लास्ट पैराग्राफ है, और यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये इसका फाइनली यानी कि ऑथर का एक कमेंट है एनी जंग का। ये कहती हैं कि उन लोगों की सुनने के बाद
मैं दो प्रकार के वर्ल्ड को देख पा रहा हूँ। एक वो फैमिली है जो गरीबी के जंजाल में यानी कि ए वेव ऑफ पॉवर्टी में फंसा हुआ है और उस कास्ट में वो पैदा लिया है, उसके कास्ट के कलंक जो है उसके चेहरे पर लगा हुआ है जिसको कोई मिटा नहीं सकता। और एक दूसरा सर्कल है जो कि उन साहूकारों का है, बिचौलियों का है, पुलिसमैन का है, कानून के रखवालों का है, ब्यूरोक्रेट्स का है, पुलिस ऑफिसर का है, साथ में पॉलिटिशियंस का है, जो कि ये लोग पूरे लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और एक तरफ ये पुअर पीपल आर फेसिंग सो लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम, दे डोंट हैव इनफ फूड टू ईट। और वो ना तो कोई कानून जानते हैं, कुछ भी नहीं जानते हैं, उनके फादर भी नहीं जानते थे, जो भी स्थिति है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं वो, राइट। और उसमें से कोई भी व्यक्ति कुछ भी करने को तैयार नहीं है और वो हिम्मत करना भी चाहते हैं तो जैसा ऊपर बताया गया है कि उनको पुलिस उठा ले जाती है, वो इलीगल। तो ये एनी जंग कहती हैं कि बड़ा अच्छा लगता है कि मुकेश जैसा व्यक्ति, जो कि जिसके बारे में सुनता हूं तो मुझे खुशी होती है कि ही वांट्स टू बी अ मोटर मैकेनिक इन हिज लाइफ और ही इज रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेज टू गेट हिज ड्रीम। और फिर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या तुम प्लेन भी चलाना चाहते हो? वो कहता है मुकेश कि नहीं नहीं नहीं, प्लेन नहीं। वो जमीन की तरफ झांकता है और वो ही बिकम साइलेंट। और फिरोजाबाद में यानी कि बहुत कम ही प्लेन जो है फिरोजाबाद से ऊपर होकर गुजरता है। तो बेटा ये जो है चैप्टर मैंने फिनिश कर दिया है, लॉस्ट स्प्रिंग। और आई होप सो कि पहले वीडियो आपको काफ़ी अच्छा पसंद आया होगा, ये वीडियो भी काफ़ी अच्छा पसंद आएगा। और इससे नेक्स्ट वीडियो जो है देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर का वीडियो मैं बनाने जा रहा हूँ। सो आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल, सो नेक्स्ट वीडियो you can get easily, okay? Or save this channel. My channel name is Blue Star Academy for English, that you have to subscribe more and more, okay? Thank you very much. I will